Oh, hello everyone. I'm Pawan Kahukar, and let's resume with information system audit. In the previous lecture, we are done. We have automated our business process, and when we automate our business process, we have to use. Tell me what we have to use. We have to use, yes, guys, we have to use information systems for the enterprises, and those are enterprise information system, rightly so. The most prominent information system, which is one of the best softwares available, is what? Can you name it? The most prominent information systems? ERP. Yes, guys, it's correct. Now, a lot of organizations have automated their systems. A lot of them have automated their systems and they have used information systems. Now, are these information systems reliable? It has to be checked for, and that is ISA, Information Systems Audit. We will check whether the information systems are effective, whether the information systems are efficient, whether data is well protected, and whether the assets are safeguarded. Need of information system audit. The cost of data loss is very high. The incorrect decision making may happen. The cost of computer abuse can be too much. Hardware, software, and personnel are very valuable. We need to make sure that hardware, software, and people's data are protected. High cost of computer error and privacy, one of the important reason. अच्छा, by the way, privacy के लिए कौन सा concept है आजकल जो बहुत famous है? SPDI एंड privacy policy. अब अगर हमें सिस्टम ऑडिट करना है तो सिस्टम ऑडिट हम तब करेंगे जब ट्रांजैक्शन होने के बाद तभी के तभी रिकॉर्डिंग होती है. ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग के सिचुएशन में हमें उम्मीद करते हैं कि हम लोग ऐसे सिस्टम में जब अकाउंटिंग भी तभी के तभी हो जाती है तो ऑडिटिंग लेट क्यों हो, इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है कॉन्करेंट ऑडिट मॉड्यूल्स, ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस ऑडिट टेक्निक्स, कैट. याद रहेगा. अच्छा, इनको मॉड्यूल्स क्यों कहते हैं? ये ऑडिट के सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स क्यों कहते हैं? Because it is a part of, yeah, it is a part of the host software, and that host software can be any information system. Now, can you name me all the concurrent audit modules? Do you know this by any idea? Snapshot, Scarf, ITF, CIS, and audit hooks. Perfect. Snapshot, Scarf, ITF, CIS, and audit hooks. ठीक है. Difficult question I'm gonna put. Tell me, out of all these concepts, which one mixes test data along with normal production data? तो इसलिए ITF अच्छा है या बुरा है? It's not up to the mark, and that is why what was developed? CIS, continuous and intermittent simulation. Continuous and intermittent simulation में do we develop standard entries? And those standard entries are compared with systems or software's actual entry. If there is no variance, perfect. The application software processing logics are absolutely correct. If not, the variance is reported to perfect answer. कुछ भी गलत नहीं हो रहा है अब तक. अंडर विच कंसेप्ट, ठीक है, स्नैपशॉट का क्वेश्चन पूछ रहा हूं. अंडर विच कंसेप्ट वी क्रिएट डमी एंटिटीज? कल नहीं आ रहा था ये आंसर कल नहीं आ रहा था, आज आ रहा है. व्हाट्स द डिफरेंस? The difference is revision. Someone has asked you a question, you could not answer it, you remember it for a longer period of time. ठीक है, चलता है. When we talk about other data collection capabilities along with snapshot, which software am I talking about? Talking about Scarf. Scarf का सारा डेटा कहां जाता है? स्नैपशॉट में फोटो खींचेंगे. स्नैपशॉट में फोटो खींचेंगे. ओनली मटेरियल. सीआईएस का सारा डेटा कहां जाता है? एक्सेप्शन लॉक फाइल.
CIS मास्टर फाइल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, CIS मास्टर फाइल, इसको कहते हैं, याद है ना अक्षय कुमार, इसको कहते हैं ये, ठीक है, एक्सेप्शन लॉग फाइल। कोई बात नहीं, चलता है गाइस, ये सारी मिस्टेक्स हम लोग करेंगे। और इफ आई वांट टू, मैं आपको पहले ही हिंट दे देता हूं, हिंट ले लो, आई वांट टू फ्लैग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, क्वेश्चन तो बोलने दो, वेरी नाइस। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से रोकने के लिए segregation of duties, is it a valid control? It's very important, तो बहुत सारे frauds हो जाते हैं। The examples of segregation of duties is transaction authorization at every point, split custody, dual custody, workflow has to be checked, and periodic review. Review is a very important control. Okay, plus अगर SOD से गड़बड़ हो रही है तो हम लोग थोड़े एक्सेस प्रिविलेजेस कम कर देंगे या फिर मिटिगेटिंग कंट्रोल्स लेके आएंगे। ओके, ऑडिट, tracing a transaction right from start till the end is called as an audit trail. What are the objectives of audit trail? DRP, हाँ, what is DRP? Objectives of audit trail में DRP आंसर है। What are the DRP? Detecting unauthorized access, reconstruction of events and personal accountability, DRP। याद रहेगा क्या? मुझे पता था आपको याद है, आपको याद ये नहीं आएगा। हा, रेज योर हैंड्स। ऑडिट ट्रेल के दो टाइप्स बताइए। ऑडिट ट्रेल के दो टाइप्स, क्या हुआ? नो, यू डोंट हैव द वन विच रिकॉर्ड्स द इवेंट एंड द वन, हाँ, रिसोर्स कंजम्पशन। अच्छा, थोड़ा सा हिंट दे दो, थोड़ा सा चालू करके देना आंसर, तो मैं दे दूंगा, है ना? अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल एंड ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल डज व्हाट? रिकॉर्ड इवेंट्स, एंड ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल रिसोर्स कंजम्पशन। देखो इसको एक बार अच्छे से, ये भूलना नहीं हमें। So that's accounting audit trail and operations audit trail, recording events and resource consumption. Objectives of audit trail, you cannot forget this answer. अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो एग्जाम देने, अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो एग्जाम देने मत जाना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ट्रेल, DRP, डिटेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स and personal accountability. Then followed by implementing the audit trail, you have to take care, you have to take reasonable and because audit trail acts as valuable evidence, you have to take reasonable care कि आपके सारे evidences और audit trails available है। Classification of controls, how do you classify the controls? On the basis of objectives, audit functions and perfect, ठीक है। On the basis of objectives of controls, what are the controls? Preventive, detective and corrective. On the basis of audit functions, managerial and application. On the basis of nature of IS resources, environmental, physical and logical. कल हमने physical और environmental कर लिया था, am I right? Today we gonna do the audit for logical access controls. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स है, लेकिन एज एन ऑडिटर हमें क्या क्या चेक करना है, लेट्स चेक इट आउट। गाइस वेरी क्रूशियल, इसको आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का रिवीजन भी समझिए और एज एन आईएएस ऑडिटर पे क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो, ऑडिटिंग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, रोल ऑफ आईएएस ऑडिटर इन ऑडिटिंग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। Auditing logical access control requires attention to several key areas that includes network access path. Oh my God, network access path को मैं ऑडिट क्यों करूं? नेटवर्क एक्सेस पाथ का मैं ऑडिट क्यों करूं? क्या कोई बता सकता है?
अगर एक एंड से दूसरे एंड पे अगर डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है तो देर इज एवरी चांस कि कोई हैकर या क्रैकर सिस्टम को पिगीबैक करे या वायर टैप करे। ओए ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? डेटा लीकेज हो जाए या जो भी। बेसिकली गिव मी वन वर्ड फॉर दिस। देयर इज एवरी चांस कि हैकर असिंक्रोनस अटैक करे, इसलिए नेटवर्क एक्सेस पाथ हैज टू बी ऑडिटेड। ठीक है। The IS auditor should conduct an independent review of the IT infra to map out organization's logical access path. This will require considerable effort and may require the use of investigative and technical tools as well as specialized experts on IT network architecture. ठीक है, वहां पे लिख दो as an auditor you try to verify whether there are any asynchronous attacks. As an auditor you try to verify whether there are any asynchronous attacks. And next point, as an auditor हम documentation check करेंगे. Are you serious? Will you do it? सर डॉक्यूमेंटेशन ही होता है हमारे पास चेक करने के लिए, और दूसरा क्या होता है? The IS auditor should request network architecture and access document to compare what was discovered independently against existing documentation. The auditor will need to determine why any discrepancies exist. What do you mean by discrepancies? Variance. Yeah, difference. Similar investigation should take place of each application to determine all of the documented and undocumented access path to function and data. So guys, system में जो आपका documented flow charts है, flow charts बनाने पड़ेंगे क्या access path बताने के लिए? डेटा यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, फ्लो चार्ट बनाएंगे हम लोग, ये फ्लो चार्ट चेक करेंगे। ओए ऑडिटर फ्लो चार्ट चेक करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, सही है क्या? और हमको आता है क्या फ्लो चार्ट समझ के, फ्लो चार्ट देख के समझना आता है क्या? इफ यू रिमेंबर गाइस, चेक आउट द टाइमिंग। कल क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व किया? आपको फ्लो चार्ट दिया है, आपको क्वेश्चन बनाना है। यहां पे हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे? यहां पे आपका फ्लो चार्ट का अंडरस्टैंडिंग चेक हो रहा था। आप समझो, डोंट ट्रीट देम, डोंट ट्रीट दिस थिंग्स फॉर नियर 7 marks, 6 marks, 8 marks question. No, guys. These are your tools for doing system audit. तो guys, जो ऑन पेपर है और जो एक्चुअल है उसमें वरायंस अगर होगा तो एज एन ऑडिटर आपका काम है कि चेक करना और सवाल पूछना कि ये वरायंस क्यों है। और काफी एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होता, फिर भी एक्सेस मिलता है। क्यों मिल रहा है इस पार्टी को अनऑथराइज्ड एक्सेस? और अगर मिल रहा है तो डॉक्यूमेंटेड क्यों नहीं है? सीक्रेट एक्सेस मिलना चाहिए क्या किसी को? सीक्रेट एक्सेस के लिए दूसरा वर्ड बताओ, सीक्रेट एक्सेस के लिए बोलो। सीक्रेट एक्सेस को कहते हैं बैकडोर। ट्रैपडोर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बैकडोर कंसेप्ट सिखाया है। ठीक है, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अब एक्चुअल ऑडिटिंग पे आते हैं। यूजर एक्सेस कंट्रोल सबसे बेसिक है यार। क्या यूजर एक्सेस कंट्रोल चेक करना पड़ेगा? सर उसमें क्या है, सबको 100% एक्सेस तो देना पड़ता है हमको, व्हाट से? The IS auditor should conduct, I'm sorry, user access controls are often the only barrier between unauthorized parties and or sensitive or valuable information. Is sensitive, which is the most, which is the highest, which is the most sensitive information? Can you tell me? टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट से नीचे हाईली कॉन्फिडेंशियल, उससे नीचे प्रोप्राइटरी, उससे नीचे इंटरनल, और सबसे इनसेंसिटिव पब्लिक।
ये आपको हायरार्की ऐसी याद आ रही है कि थोड़ी थोड़ी? Hopefully. This makes the audit of user access controls particularly significant. Auditing user access controls require keen attention to several key factors and activities in these areas. Okay. So guys, सबसे पहले हमें यूजर ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल देखना है. ठीक है. सबसे पहले हमें देखना है ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल. क्यों? यूजर क्या खतरनाक हो सकते हैं क्या? सर कुछ याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? ये कहां देखा? हमने देखा देखा सा लग रहा है. Human behavior, sources of risk. These are the sources of risk. चलो देखते हैं. These are to determine if the controls themselves work as designed. Auditing user access control requires attention to several factors, including authentication. ठीक है. आपको ऑथेंटिकेशन चेक करना है कि जिस यूजर को एक्सेस दे रहे हैं वो ऑथेंटिक यूजर है या नहीं. ठीक है. दूसरा, एक्सेस वायलेशन, किसी ने अपने एक्सेस का मिसयूज तो नहीं किया है. यूजर अकाउंट लॉकआउट. एक मिनट, यूजर अकाउंट लॉकआउट कब होगा बताओ तो जरा. यूजर अकाउंट लॉकआउट कब होगा? जब यूजर गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करेगा तब उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा. इससे क्या पता चलेगा? लॉकआउट से हमें क्या पता चलेगा? अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है. परफेक्ट. इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ी. कहां पढ़ा हमने? We've said this in the intrusion detection system. लेकिन intrusion detection system के बाद एक और मैकेनिज्म है. कौन सा? फायरवॉल. ठीक है. ये फायरवॉल आईडीएस के अंदर चले जाएगा क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस? पक्का? और फायरवॉल से जाएगा? फायरवॉल के थ्रू जाएगा? तो ये ग्रीन वाला तो जा रहा है. ऑथराइज्ड. ग्रीन वाला ऑथराइज्ड है, रेड वाला अनऑथराइज्ड. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सॉरी. सो गाइस देखो, ये फायरवॉल हमने एक बार अच्छे से पढ़ा है, आज तक काम आ रहा है वो. ठीक है. और हमने जान लगा दी थी जब फर्स्ट टाइम हमने फायरवॉल पढ़ा था. उसमें हमने गलती भी करी थी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में. कुछ याद है क्या? बिकॉज आईडीएस कैन बी पेनिट्रेटेड. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, इट्स अ तो एक काम करो, वहां पे लिख दो इंट्रूजन डिटेक्शन के ऊपर लिख दो आईडीएस और प्रिवेंशन के ऊपर लिख दो फायरवॉल. देन डॉर्मेंट अकाउंट्स. ये डॉर्मेंट अकाउंट्स क्या होते हैं यार? डॉर्मेंट अकाउंट्स तो मैंने कभी, डॉर्मेंट अकाउंट्स क्या? डॉर्मेंट अकाउंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, ये बता दो. हाँ, सुपरवाइजरी पासवर्ड्स, देन शेयर्ड अकाउंट्स एंड सिस्टम अकाउंट्स. ये सारे यू हैव टू चेक फॉर व्हाइल ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल्स. अब यूजर एक्सेस कंट्रोल के बाद जो सेकेंड पॉइंट है, पासवर्ड मैनेजमेंट. The IS auditor needs to examine the password configuration settings. एक मिनट, पासवर्ड मैनेजमेंट ये कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया क्या मैंने आपको? याद करो, याद करो. टर्न द पेजेस, टर्न द पेजेस. अभी पेज चेक करो और मुझे बताओ पासवर्ड मैनेजमेंट हमने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पढ़ा है क्या? दिस इज क्रॉस लर्निंग. दिस इज गाइस, दिस इज क्रॉस लर्निंग. जब आपको अगर ये आंसर अभी आ रहा है और आप पीछे जाके उसको करस्पॉन्डिंगली चेक कर पा रहे हो, दिस इज क्रॉस लर्निंग. ये ऐसी चीजें फिर आप कभी नहीं भूलते. कम से कम इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक तो होती है, याद रहने की. Some of the areas requiring examination are how many characters must a password have? How many characters? You are an IS auditor. How many character must a password have? Very nice. Whether it has whether there is a maximum length, how frequently must the password be changed? You tell me, how frequently must a password be changed? Monthly. I don't know, you tell me. तुम password manager तुम हो, every week. Guys, whatever. अच्छा एक मिनट. कितने लोग पासवर्ड भूल जाते हैं बार बार? भूल जाते हैं ना हम लोग पासवर्ड बार बार. फिर वीकली चेंज करोगे तो मर जाओगे तुम. ठीक है. तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना है.
How frequently the password must be changed? I think once in 6 months would be a better answer. Whether former password may be used again? क्या पुराने पासवर्ड यूज करने देगा? नहीं, यूज करने नहीं देने चाहिए. Whether the password is delayed when logging in? अगर पासवर्ड डालने में डिले हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा? आपने सिस्टम में यूजर आईडी डाला और अगर अगले 3 मिनट के अंदर पासवर्ड नहीं डाला, इसका मतलब तुम अनऑथराइज्ड यूजर हो. देखो पता है तो डाल देता तू. सही है कि नहीं? वो ओटीपी डालने का समय होता है, देखा क्या आपने? ओटीपी डालने का समय होता है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड. 30 सेकंड के अंदर नहीं डाला, इसका मतलब आपके पास वो फोन नहीं है, और आपके पास वो फोन नहीं है, इसका मतलब आप परफेक्ट. हाँ. सिस्टम अकाउंट्स इज एडमिन अकाउंट्स. जो मेन बंदा जिसके पास सुपरवाइजरी पासवर्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक का कोई ब्रांच है तो ब्रांच मैनेजर विल हैव एन एडमिन अकाउंट. उसके बाद बोलिए ना. शेयर्ड अकाउंट्स. अगर एक सिस्टम को, एक आईडी को दो लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज शेयर्ड अकाउंट. जैसे जॉइंट अकाउंट होते हैं बैंक्स में, वैसे. तो आप अलाउ करोगे क्या शेयर्ड अकाउंट्स? आप अलाउ करोगे क्या शेयर्ड अकाउंट्स? या अगर क्लाइंट चाहता तो दे देंगे एक्सेस. फिर उन दोनों में प्राइवेसी इशू होता रहेगा. देन the IS auditor should identify all user access request process and determine if these processes are used consistently throughout the organization and access is given only on approval basis and adequacy of segregation of duties. यानी एज एन ऑडिटर, सुनो ना, एज एन ऑडिटर अगर तुमको कुछ पॉइंट याद नहीं आ रहा तो ये हमारा पॉइंट तो बना बनाया है. ये क्या कहते हो? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ऐसा एरिया है जिसमें हम लोग अब पीएचडी कर चुके हैं ऑलमोस्ट. देन ऑडिटिंग एम्प्लॉय टर्मिनेशंस. The IS auditor should examine the employee termination process and determine its effectiveness. What do you mean by employee termination? इसका क्या मतलब है employee termination? रिटायरमेंट नहीं रे. हाँ. हाँ. टर्मिनेशन मतलब कि दिस पर्सन नाउ, दिस एम्प्लॉय एक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या हुआ? सर, व्हेन ही वाज अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके पास उसका एक डेडिकेटेड यूजर आईडी है, उस डेडिकेटेड सिस्टम है, डेडिकेटेड लैपटॉप है जो घर ले जाता था. हो सकता है BYOD हो. एम आई राइट? ब्रिंग योर ओन डिवाइस हो. तो क्या हम लोग उसको टर्मिनेट होने के बाद भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं, उसके बाद भी हम क्या उसको एक्सेस देंगे? एग्जैक्टली, यू हैव टू चेक दैट. This examination should include understanding of how terminations are performed and how user account management personnel are notified of termination. देखेंगे कि जिसका टर्मिनेशन हो गया है क्या उसका यूजर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है या नहीं. पता चला वो टर्मिनेट हो गया लेकिन वो आपका अकाउंट अभी भी यूज कर रहा है. कैन ही बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ थ्रेट? हमेशा याद रखना, एक्स इज ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट, वेरी डेंजरफुल. एक्स हमेशा डेंजरफुल होती है. ठीक है, वट एवर. सो गाइज आपको ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉय टर्मिनेट हो जाता है तो उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना है आपने, क्योंकि वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ थ्रेट हो सकता है. क्योंकि उसको अगर कोई कोई कंपनी से निकाला जाता है तो गाइज विल इट बी आर बाय बाय इज ऑलवेज गुड? अगर आप किसी को टर्मिनेट कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, ले ऑफ कर रहे हो, तो खुशी खुशी थोड़ी ना जाएगा. कहेगा वो देख लूंगा मैं तुझे वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीजें होती है. तो ही कैन बी वेरी ओके, वेरी डेंजरस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो गाइस, ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में पहला यूजर एक्सेस कंट्रोल, दूसरा है यूजर एक्सेस लॉग्स. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय लॉग्स. नॉट बैड. और कुछ? यूजर एक्सेस लॉग्स यानी क्या? हिस्ट्री ऑफ द यूजर.
किसने कब कौन से कंप्यूटर को कितने बजे एक्सेस किया है, इसका पूरा लॉग होना चाहिए। क्यों? इसका लॉग होने की क्या जरूरत है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल। देखो, user access log, the IS auditor needs to determine what events are recorded in the access log. The IS auditor needs to understand the capabilities of the system being audited and determine if the right events are being logged and if the logging is suppressed on events that should be logged. आपको देखना है कि कौन से इवेंट्स लॉग होते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो लॉग नहीं हो रहा है, ये भी चेक करो कि कौन से इवेंट्स लॉग नहीं हो रहा है, ये भी चेक करने वाली बात होगी। उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सेस लॉग, the IS auditor should determine if the organization's access logs are aggregated or if they are stored on individual system. तो गाइस लॉग सेंट्रलाइज होनी चाहिए या एक एक सिस्टम पे होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? हम्म, अगर आपके सिस्टम पे लॉग रहा तो आप डिलीट कर दोगे ना, आप समझो, आप मैनिपुलेट कर दोगे उसको। सेंट्रलाइज एक्सेस लॉग रहा तो आपका हिस्ट्री सुपरवाइजरी पासवर्ड या एडमिन सिस्टम यूजर के पास रहेगा और आपके ऊपर ध्यान रख सकते हैं फिर लोग। इंडिविजुअल कंप्यूटर्स पे इट वोंट हेल्प यू मच। देन एक्सेस लॉग प्रोटेक्शन, काफी लोग होशियारी करेंगे, लॉग ही डिलीट कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अरे यार, हम खुद की बात कर लेते हैं ना, हम अपनी बात कर लेते हैं। एक नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको हमने फोन नहीं करना चाहिए था, उसको हमने फोन कर दिया, और अगर हमको पता है कि कोई ये नंबर अगर चेक कर लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आर यू देयर विथ मी? ठीक है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, जो अनडिजायरेबल नंबर है, जो जो हमारे लॉग में नहीं दिखना चाहिए, क्या हम वो डिलीट कर देते हैं? यस सुन, अबे देखो, इतने साफ सुथरे तो तुम बनो ही मत मेरे सामने। क्या हम डिलीट कर देते हैं? इसलिए नहीं कि कुछ बहुत खतरनाक कर रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि आगे वाले को दुख ना हो। तो एक्सेस लॉक प्रोटेक्शन, यूजर भी बहुत होशियार होता है, एंट्री डिलीट कर देता है, डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। The auditor needs to determine if access logs can be altered, destroyed, or attacked to cause the system to stop logging events. For especially high value and high sensitive environment, the auditor needs to determine if logs should be returned to digital media that is unalterable, such as optical worm. Write once, read many media. ये worm चाहिए बोल रहा है यार, what is worm? ऐसा डिस्क जिसमें रिकॉर्ड होने के बाद उसको सिर्फ रीड करने का ऑप्शन होना चाहिए, डिलीट करने का या चेंज करने का नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेस लॉग रिव्यू। एक मिनट, जस्ट चेक दिस आउट, ये क्या है देखो तो जरा। क्या है ये? एक्शन एक्सेस लॉग के एग्जांपल। लॉग इन हुआ, कौन से यूजर ने एक्सेस किया? यूजर यूजर टू एडमिन वन फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 10.0.200.82। क्या ये? कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है ये। अच्छा, कितने बजे लॉगिन किया है? 3:22 पे। ठीक है गाइस, कौन सा ऑडिट ट्रेल है? एक्सेस लॉग पे है ये, पक्का? अच्छा एक मिनट, लॉगिन करके यूजर टू एडमिन वन, यूजर टू एडमिन वन में लॉग आउट कब किया देखो? ठीक है, 147 को उन्होंने लॉगिन किया। ठीक है, और नहीं सॉरी, 3:22 PM को उन्होंने लॉगिन किया और फिर लॉग आउट किया। ऐसी मल्टीपल हिस्ट्रीज होगी, तो ये लॉगिन और लॉग आउट के बीच में जितना भी समय है उससे हमें क्या पता चल सकता है? ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। तो आप ही सोच के बताइए, क्या ऐसा सारा मेंटेन करना जरूरी है? व्हाट से? यस सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से, और क्या ये भी पता चल रहा है कि कौन से कंप्यूटर से हो रहा है? कैसे पता चल रहा है? तो लिखा ही नहीं कंप्यूटर पर, आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो गाइस इसमें देखो हर चीज है, एक्सेस लॉग, डायरेक्टरीज, ग्रुप्स, यूजर्स, हर चीज है।
हर बंदे की हर एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल, और हमें इसको रिव्यू करते रहना है, हमें इन एक्टिविटीज को, इन लॉग्स को रिव्यू करते रहना है. The IS auditor needs to determine if there are policies, processes or procedures regarding access log review, then access log retention. ये जो access log हमने बनाया 24 घंटे में डिलीट होना चाहिए. व्हाट से रिटेन करके रखना पड़ेगा आपको कुछ पर्टिकुलर समय तक. The IS auditor should determine how long access logs are retained and by the organization and they are backed up. क्या इसका बैकअप होना चाहिए एक्सेस लॉग का? और ये बैकअप कहां रखेंगे? ये बैकअप कहां रखेंगे? ऑफ साइट. बड़े प्रो बन गए अब तुम धीरे धीरे. गाइस दैट्स गुड. यही तो हम चाहते थे कि हम लोग इतनी बार और इतने इंटरवल, ये चैप्टर हम लोग मैं पहले चैप्टर के साथ भी सिखा देता तो शायद आपको समझ जाता, लेकिन जितना जितना फ्रीक्वेंटली हम लोग पढ़ते उतना आसान हो जाता है. नेवर माइंड. ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में वी आर डन विथ यूजर एक्सेस कंट्रोल, क्वाइट इजी, पासवर्ड मैनेजमेंट एंड ऑल है. User access log, maintaining the history, retention of history, reviewing the logs, and internet point of presence. Oh my God, this is something which we have not discussed. Internet point of presence. अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारे फेसबुक पे हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन है? डेट ऑफ बर्थ है. और एक मिनट, और क्या पूरी डेट ऑफ बर्थ है? पूरी 2 अक्टूबर 1999 पूरी है. अच्छा एक बात बताओ, क्या पूरी होने की जरूरत है? नहीं यानी मैं सोच रहा हूं, यानी ठीक है बर्थडे होना चाहिए वहां पे ताकि लोग तुमको विश करें, तुम फिर थैंक यू बोलो. ठीक है, वेरी ब्लेस्ड, योर विशेस मीन अ लॉट. ठीक है, तुमको ये मौका मिले इसके लिए तुमने अपना बर्थडे लिखना चाहिए. वेरी नाइस, दैट्स नथिंग बैड इन इट. बट क्या ईयर मेंशन करना जरूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी को अपनी एज बताने की कोई जरूरत है. सबको बर्थडे इंपॉर्टेंट है. कितने कितने का, उससे क्या हो जाएगा? तू नाबालिग है क्या पाटिल? एग्जैक्टली माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. कितने लोगों की सच्ची सच्ची इंफॉर्मेशन है फेसबुक पे? कैसा है ना, ये हमने जबरदस्ती प्रेजेंस दे दिया अपना. हमारी काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है. अगर आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करना होता है क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर को, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द क्वेश्चंस इज योर डेट ऑफ बर्थ. और अगर हमारे देखो ऐसा नहीं है कि बहुत ही डेट ऑफ बर्थ तो आसानी से मिल जाएगी मेरी कहीं भी, ऐसा हो सकता है आपके दिल में, लेकिन गाइस खुद के हाथ से देनी चाहिए कि हमने कुछ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर नो रीजन. क्या कहते हो गाइस? इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, हमारी कंपनी ने अपनी कितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रेजेंट की है? हमारी कंपनी ने अपनी कितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रेजेंट की है? कितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रेजेंट करने की जरूरत थी और कितनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रेजेंट है, यह चेक करना है. आ जाइए. सबसे पहला पढ़ते हैं पहले कंसेप्ट. द आईएएस ऑडिटर who is performing a comprehensive audit of organization system and network system need to perform point of presence audit to discover what technical information is available about organization's internet presence. Some of the aspects of this intelligence gathering include, पहला सर्च इंजन. पहले सर्च इंजन में देखो कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है. Google, Yahoo and other search engine should be consulted to see what information about organization is available. Searches should include the name of the company officers and management, key technologists, and internal only nomenclature such as name of the project. So guys, आपके सर्च इंजन करने के बाद आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए. क्या कहते हो? क्या आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज की लिस्ट मिल जानी चाहिए लोगों को? याहू पे, गूगल सर्च कर पे, बिंग करके या ask.com पे आपकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है आसानी से. इज इट गुड और बैड? गाइस अगर मुझे मान लो कोई पैरेलल कंपनी ओपन करनी है तो मेरे पास सबसे आसान काम क्या है? एग्जिस्टिंग जो अच्छी कंपनी उसके एम्प्लॉयज को 120% सैलरी देके
अपने तरफ खींच लूं, क्या कहते हो? क्या सही में आपको अपने एम्प्लॉइज का नाम ऑनलाइन देने की जरूरत थी? नहीं थी, क्यों दी? एज एन ऑडिटर ये हमारी जिम्मेदारी है, रिमूव दैट, दैट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड योर कंपिटिटर मे मिस यूज इट। दूसरा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, पर्सनल लेवल पे लोग डाल देते हैं, सिटिंग एट फुटाला, फीलिंग अलोन, फीलिंग अलोन, फीलिंग अलोन एट जेएम रोड, जंगली महाराज रोड, फीलिंग अलोन एट नरीमन पॉइंट विद 50 अदर्स। एक मिनट, इंडिविजुअल लेवल पे चलो तुम बता भी दो, एक्सेप्ट भी हो जाए, कंपनी को अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालनी चाहिए क्या? जी नहीं। Social networking like Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter should be searched to see what employees, foreign employees, and others are saying about the organization. Any unauthorized or authorized fan pages should be searched as well. काफी एम्प्लॉयज भी हो सकता है, एम्प्लॉयज भी होशियारी मारते मारते कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर दे, ठीक है? सो गाइज दैट मे नॉट बी गुड, इट कैन गो अगेंस्ट योर कंपनी, इट कैन गिव योर कंपिटिटर एन एडवांटेज। यानी मैं क्या कहता हूं, जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उतनी ही इंफॉर्मेशन दो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन बांटनी चाहिए क्या? क्या कहते हो? नॉट एट ऑल। देन ऑनलाइन, ऑनलाइन सेल्स साइट, साइट सच एज क्रेगलिस्ट, ये क्रेगलिस्ट थोड़ा पुराना है, ईबे, Amazon, Flipkart should be searched to see if anything related to the organization is sold online. ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डोमेन नेम, द आईएस ऑडिटर शुड वेरीफाई कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर नोन डोमेन नेम्स एज वेल एज रिलेटेड डोमेन नेम्स। फॉर इंस्टेंस, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन mycompany.com, ऑर्गेनाइजेशन शुड सर्च फॉर डोमेन नेम सच एज mycompany.net। एक मिनट एग्जांपल दे देता हूं आपको। डोमेन नेम यानी व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन नेम? ICAI.org is a domain name. Are you there with me? ICAI.org is a domain name. ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरा वेबसाइट है pavangahukar.com, तो लोग क्या दूसरा ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं? pavangahukar.in भी डाल के देख सकते हैं क्या लोग वर्ड से? क्या कहते हो? क्या pavangahukar.edu भी डाल के देख सकते हैं? क्या pavangahukar.co.in भी डाल के देख सकते हैं? क्या pavangahukar.academy भी डाल के देख सकते हैं? देख सकते हैं। एक काम करो, कोई डोमेन नेम बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, 3-4 हजार में तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, ब्रोकरेज एंड ऑल देके। तुम्हारी मेन वेबसाइट शायद pavangahuka.com हो, लेकिन आप pavangahuka.in भी खरीद के रख लो, pavangahuka.edu भी खरीद के रख लो, pavangahuka.co.in भी खरीद के रख लो, क्योंकि और pavangahuka.ac भी खरीद के रख लो। इससे क्या होगा, हो सकता है आपके कंपटीटर आपकी कोई पैरेलल वेबसाइट बना दे इनके नाम से, और यूजर को क्या समझेगा, यूजर को तो लगेगा पवन सर की वेबसाइट है, और आपकी नाम का मिसयूज हो जाएगा वहां पे। तो रिलेटेड सारे डोमेन नेम्स आपको खरीद के रखने हैं, ठीक है? और ये टॉप लेवल डोमेन्स है पूरी दुनिया में, .org, ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट, .in in India, .net in a network, .co.in is company in India, .uk is United Kingdom, .com is commercial organization, .edu and all that stuff. तो गाइस क्या है, आप भी जब कोई नया प्रोजेक्ट बनाओगे, नई कंपनी बनाओगे, नया स्टार्टअप करोगे, तो आपने जो भी आपने नाम सोचा है, ठीक है, तो उससे आजू बाजू के सारे टॉप लेवल डोमेन खरीद के रखना अपनी वेबसाइट को लेके। The ISO data should verify contact information for known domains as well. For instance, the organization mycompany.com, organization should search for domain names like company.net, mycompany.info, mycompany.biz to see if they are registered and what contents are available. ठीक है, तो गाइस खरीद ही लेनी चाहिए आपने, अगर आप इतने बड़े, आपको लगता है आप बड़े बनने वाले हो, तो सारे डोमेन्स खरीद के रख लो। एंड द लास्ट वन, justification of online presence. The IS auditor should examine business records to determine on what basis organization establish online capabilities like email, internet-facing websites, internet e-commerce, internet access for employees, and so on. These services and risk to the business and consume resources. These services add risk to the business. Guys, अगर आपका कोई प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए, तो आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट क्यों बना के रखी है? आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के रखी है और वहां से आप कुछ सेल नहीं कर पाते। इज इट राइट और रॉन्ग?
इज इट राइट और रॉन्ग? क्या कहते हो? इट इज रॉन्ग। लोग गाली मारेंगे ना, वेबसाइट काहे को बना के रखी। इट इज एज गुड एज हम लोग किसी शॉप में जाते हैं और पूछते हैं भैया को, भैया ये है क्या? वो कहते हैं नहीं है ये, तो हम क्या कहते हैं उसको? दुकान कहीं को खोला बे तूने, बंद कर दे दुकान, प्रोडक्ट ही नहीं रखना है, ऐसा बोलते ना हम लोग। तुम्हारे कॉर्पोरेट को भी गाली पड़ेगी, तुमने बेचना नहीं है तो वेबसाइट क्या है ओपन करके रखी, वो भी ई कॉमर्स वाली। देन these services address to the business and consumer resources. The auditor should determine if a viable business case exists to support these services or if they exist as a benefit for the employees. आप देख लो कि employees के लिए beneficial है या नहीं है, क्यों काम कर रहे हो, क्या कंपनी को कोई बेनिफिट हो रहा है, ये भी चेक कर लो। जस्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस थोड़ा सा क्रूशियल है, क्योंकि इसमें हम लोग खुद फंसते हैं, एज एन इंडिविजुअल हम लोग फंसते हैं। ठीक है, कंपनी से रिलेटेड सर्च इंजन में क्या क्या लिख के आता है चेक करो, कुछ गलत इंफॉर्मेशन है तो उसको रेक्टिफाई करवाओ या फिर उसको रिपोर्ट करो। सोशल नेटवर्किंग साइट में प्रेजेंस देखो, हमारे एम्प्लॉयज क्या क्या डालते हैं, कैसी कैसी टैगिंग करते हैं, ये चेक करो। ऑनलाइन सेल साइट देख लो, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट देख लो, डोमेन नेम चेक करो, आपके इर्द गिर्द वाले डोमेन नेम चेक करो। एंड जस्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, व्हाई डू वी नीड टू बी ऑनलाइन? अगर आपको जरूरत है तो ही ऑनलाइन आओ। सो गाइस, ऑडिट ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, यूजर एक्सेस कंट्रोल, यूजर एक्सेस लॉग्स एंड इंटरनेट एक्सेस, internet points of presence. Now, these are all the audit of logical access controls. All right, guys. So, ऑडिटिंग ऑफ वेरियस कंट्रोल्स इन दिस चैप्टर, आईएस ऑडिट हमने डेडिकेटेड एक चैप्टर ही बना दिया, क्योंकि इसमें सारा ऑडिट 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 है, ऑडिट ट्रेल है, ऑडिटिंग ऑफ वेरियस कंट्रोल्स है। तो हमने इसको इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अलग से चैप्टर बनाया। इज इट वाइज टू मेक अ डिफरेंट चैप्टर, या फिर वो फर्स्ट चैप्टर ही इतना बड़ा हो जाए कि कुछ समझ ही नहीं आए कि फर्स्ट चैप्टर करना है छोड़ना है? क्या कहते हो? इज इट वाइज टू स्टडी इट एज अ डिफरेंट चैप्टर, और इज इट वाइज टू लर्न इट एट द एंड? क्या कहते हो इस चैप्टर को? अगर हम लोग इसको पहले ही चैप्टर में पढ़ लेते ना, पूरी दिमाग की खिचड़ी हो जाती है वहां पे कि अरे क्या है ये ऑडिट 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 ऑडिट। कई ऑडिट टूल्स, हम जब फ्रेश माइंड से हमने ऑडिट टूल्स पढ़े, तो क्या तुमको स्कार्फ, सीआईएस, आईटीएफ, स्नैपशॉट समझने में दिक्कत है? When we make a fresh start, it is always the understandability level always enhances. That's why we have ripped it off and made it a new chapter. Nevertheless, कौन से कंट्रोल्स ऑडिट हो चुके हैं बताएंगे जरा? Environmental controls done, physical security control done, logical access controls done, मैनेजेरियल कंट्रोल्स एंड क्या बोला है? Managerial controls and their audit trail. Do you remember by any chance managerial controls? चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। aha, my favorite question. What's a bank balance? Anyone would like to volunteer the bank balance? सर 1500 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए। लेकिन हम लोग इसकी चिंता नहीं करते। जब हम लोग इसकी चिंता नहीं करते तो कोई बैंक का एम्प्लॉय कौन सा फ्रॉड करता है हमारे साथ? राउंडिंग डाउन फ्रॉड करता है। ठीक है, ये फ्रॉड क्यों हुआ? क्योंकि डिजाइनर भी, डेवलपर भी, टेस्टर भी, तीनों एक ही एम्प्लॉय था, एक ही एम्प्लॉय, डिजाइनर भी वही, डेवलपर भी वही और टेस्टर भी वही। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने किया, एनालिसिस भी उन्होंने किया, सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। ये क्या, ये डायग्राम देखा देखा सा लग रहा है, किस चीज का डायग्राम है ये? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, यहां पे राउंडिंग डाउन जैसे फ्रॉड को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिजाइनर कोई और रहेगा, डेवलपर कोई और रहेगा, टेस्टर कोई और रहेगा। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ
सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करना, इज इट, आर वी यूजिंग टेक्नोलॉजी और आर वी यूजिंग अ ब्रेन? Oh, sorry. Are we using a brain? What are we using? Managerial control का example है ये. This is managerial controls. So we need to audit it. Let's check it out. One by one देखते हैं इसको. Managerial control and their audit trail. The auditors play a vital role in evaluating the performance of various controls under managerial controls. Some of the key areas that auditors should pay attention to while evaluating managerial controls and its types are. एक मिनट पहले तुम मुझे बताओ, do you remember that answer? टाइम पास से डरो, क्वालिटी से बीसीपी, बीसीपी पढ़ो, कुछ याद है क्या? अगर ये याद है तो फिर हमारे लिए ये समझना काफी आसान हो जाएगा. लेट्स चेक इट आउट. मैनेजमेंट सबसिस्टम में सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट. द टॉप मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट आईएएस फंक्शन इज वेल मैनेज्ड and it is responsible primarily for long run policy decisions and how IS will be used in the organization. ठीक है, what is IS? Information system. टॉप मैनेजमेंट का काम क्या क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. सर ये तो कहीं नहीं पढ़ा आपने हमको. मैनेजमेंट का क्या काम होता है? ओए हेलो, पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना हमने, एबीपी में. एक मिनट सर, आपने तो कुछ और पढ़ा था, प्लानिंग पढ़ा था याद है हमें, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था, लीडिंग नहीं पढ़ा था सर आपने. आपने क्या पढ़ा था? डायरेक्टिंग पढ़ाया था. लीडिंग, डायरेक्टिंग. Auditors, very nice. Auditors need to evaluate whether the top management has formulated a high quality information systems plan that is appropriate for the org. Guys, छोटा सा एंगल ऑडिटर का, पहला जो पैराग्राफ है वो सेम है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. छोटा सा पैराग्राफ ऑडिटर का. Auditor need to evaluate whether top management has formulated high quality information systems plan that's appropriate for the organization. As an auditor, you need to check it कि सब अप्रोप्रिएट किया है या नहीं. सर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अप्रोप्रिएट ही करेगा ना. टॉप मैनेजमेंट तो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं. टॉप मैनेजमेंट तो हमेशा कंपनी का अच्छा ही करेगा, हाँ है ना? Raise your hands. Tell me world's any three management fraud. Raise your hands. Raise your hands. मैनेजमेंट फ्रॉड के एग्जांपल्स दीजिए कृपया. ओनली वन स्टूडेंट, साक्षी, अक्षत. दैट्स इट. अंशु, वेरी गुड अंशु, कीप इट अप. ओनली 3 स्टूडेंट्स. इतने लोग पास होते एग्जाम में, फिर डोंट बी सरप्राइज ना. अंशु बोल. सत्यम हो गया, ठीक है, नॉट बैड. सत्यम से भी बड़े. खुशी, विजय, ओए हेलो, ठीक है, नॉट बैड. तो ये लोग डायरेक्टली चोर निकले, मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं किया इन्होंने, ये डायरेक्टली पैसे लेके भाग गए. मानसी, टाइको, एनरॉन, वर्ल्डकॉम. साक्षी, आर्थर एंडरसन, हाँ, एनरॉन, नॉट बैड, चलता है, कोई बात नहीं. अक्षत, ये कहां पढ़ा था हमने? ये कौन से कंसेप्ट के पहले पढ़ा था? सॉक्स, हाँ, सरबेन सॉक्सले. सर हमको एग्जाम्पल याद नहीं, हमको कंसेप्ट याद है सर, हमको एग्जाम के लिए याद है. वेरी नाइस, ये भी चलेगा हमको. ठीक है, तो मैनेजमेंट फ्रॉड करते हैं तो ऑडिट करो, उन पे भी ध्यान रखो. ठीक है. देन प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रामिंग न्यू सिस्टम, प्रोवाइडिंग जनरल सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर लाइक प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस. एक मिनट, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यहां तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा. प्लानिंग, प्लानिंग कवर हो रहा है क्या? देखो कहां है प्लानिंग. प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, ये प्लानिंग फेज होता है. देन डिजाइन, सिस्टम डिजाइन. उसके बाद कोडिंग, कोडिंग, डेवलपमेंट. देन टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, और फिर उसके बाद ऑपरेशंस होता है और मेंटेनेंस होता है. Auditors need to thoroughly evaluate whether all the steps
इन द प्रोग्रामिंग बीन अंडरटेकन एंड एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। क्या हर स्टेप पे कंट्रोल, हर स्टेप पे कंट्रोल होना चाहिए? हर स्टेप पे क्या मैं हर स्टेप पे ऑडिट कर सकता हूं? क्या मैं हर स्टेप पे ऑडिट कर सकता हूं? क्या कहते हैं उसको? इट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट. It is called as concurrent audit. Very good. Keep it up. System development management. It is responsible for implementing and maintenance of IS. क्या लिखा है पहला पॉइंट देखेंगे जरा, क्या लिखा है? कॉन्करेंट ऑडिट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट. ये इंप्लीमेंट यानी साथ में भी करेंगे, बाद में भी करेंगे ऑडिट. ठीक है, हाँ. इसको पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑडिट यानी सिस्टम रेडी होने के बाद. जैसे तुम लोग कैसे, तुम्हारी बात कर लेते हैं. क्लास के साथ साथ भी पढ़ते हैं और क्लास के बाद भी पढ़ते हैं हम. अब हमारी हमारी और इसके बाद 2 क्लासेस बची है. यो 2 वीडियोस, 2 मोर वीडियोस एंड यू आर डन विद आवर सब्जेक्ट. ठीक है, तो क्लास के साथ तो तुम रोज हाफ एन आवर रोज पढ़ते ही थे. यस. हाँ बोलो. कॉन्करेंट स्टडीज. और क्लास खत्म होने के बाद हर दिन हम लोग 45 मिनट्स डेडिकेटेडली पढ़ेंगे सर. रोज सुबह 5:30 बजे उठेंगे सर. ठीक है, वो क्या होगा? पोस्ट इंप्लीमेंटेशन स्टडीज. ठीक है, वैसे ही पोस्ट इंप्लीमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट होने के बाद भी ऑडिट करते रहो. क्या पता मेंटेनेंस का किसी ने कुछ फ्रॉड डाल दिया, कुछ ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर, ट्रैपडोर डाल दिया. एंड जनरल ऑडिट. An external auditor is more likely to undertake general audits rather than concurrent or post-implementation audits and system development process. For internal auditors, management might require that they participate in development of material application system or undertake post-implementation review of material application system as a matter of course. So as an auditor, you have to check whether everything is being done in the best possible way. और system का regular audit होते रहना चाहिए. Regular audit नहीं हुआ तो क्या होगा? पता चलेगा कि ट्रैपडोर वगैरह है और सिस्टम का मिसयूज हो रहा है, बैकडोर मिल रहा है किसी को और हमको पता ही नहीं है. देन डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल. ऑडिटर्स शुड डिटरमाइन व्हाट कंट्रोल्स आर एक्सरसाइज टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी. सर डेटा इंटीग्रिटी तो हमने पढ़ा ही नहीं आईएएस ऑडिट में. डेटा इंटीग्रिटी आईएएस ऑडिट में पढ़ा ही नहीं हमने कहीं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएएस ऑडिट हमारा काम ही है एसेट सेफगार्डिंग, डेटा इंटीग्रिटी चेक करना, सिस्टम की एफिशिएंसी और सिस्टम का इफेक्टिवनेस चेक करना. सो लेट्स चेक इट आउट. ऑडिटर माइट should determine the controls are exercised to maintain data integrity. They might also interview database user to determine their level of awareness of these controls. Auditors might employ test data. Test data. Auditors might employ test data to evaluate whether access controls and update controls are working. इन्हें सिस्टम में जानबूझ के गलत यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे. ठीक है, जानबूझ के गलत डालेंगे और देखेंगे कि एक्सेस मिल रहा है या नहीं. ये जानबूझ के गलत डालना और फिर चेक करना कि एक्सेस मिल रहा है नहीं. इसका मतलब you're using negative methods to access the system. अगर गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाल के भी एक्सेस मिल गया, इसका मतलब क्या? एक्सेस कंट्रोल कैसे है? यानी ऐसा चेक करने के बाद अगर फिर भी एक्सेस मिल गया तो क्या बोलेंगे? डेवलपर को क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं. कैसे रे तुम लोग, मीम्स का फायदा नहीं है, छोड़ो. तुम्हारा टीचर इतना अपडेटेड है, तुमसे अपडेटेड है, वेरी बैड. देन क्वालिटी quality quality assurance management and control. Auditors might use interviews, observation and reviews of documentation to evaluate how well quality assurance personnel perform their monitoring role. Auditors might evaluate how well QA personnel. What do you mean by QA personnel? Quality assurance. Very nice, very nice. Make recommendations for improved standards of process through interviews, ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. गाइस मैं क्या कहता हूं, मेरा सिस्टम में सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड होना चाहिए. क्या कहते हो? तो या तो मैं स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन ले लूं. क्या कहते हो? कोई सर्टिफिकेशन का नाम बता दो यार. जब आ रहा होता है
रुका नहीं जाता, ये अच्छी बात है। देखो मैं तो कहता हूं मेरे स्टूडेंट में घमंड आए, ये सीए स्टूडेंट्स वो भी घमंडी। सीए स्टूडेंट कैसे बैठे रहते, ऐसे, कुछ नहीं आता मुझे, कुछ नहीं आता। हमारे स्टूडेंट 2013 भी है साले, तेरे को मालूम नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस, ये सब कब करता है इंसान, जब उसको नॉलेज हो, और नॉलेज ठीक है तभी आता है जब प्रिपरेशन अच्छा, और प्रिपरेशन आया तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा मन नहीं कर रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रिपरेशन भी वीक होती है, प्रिपरेशन वीक, कॉन्फिडेंस वीक, पढ़ाई कम, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो गाइस कीप स्टडिंग, धीरे धीरे नॉलेज अपग्रेड होगा। ठीक है, आपको बराबर आंसर्स और रास्ते मिलते जाएंगे, डोंट वरी। देन तो यू हैव टू चेक वेदर हमारे एम्प्लॉयज को पता भी है ISO 27001 जैसा कुछ होता है, उनको पता ही नहीं है एकदम, ये हमारे बंदे ही बैकडेटेड है, सिस्टम कैसे मैनेज करेंगे। Security management controls, auditor must evaluate whether security administrator are conducting ongoing high quality security reviews or not. And next is BCP, ओहो business continuity plan होना चाहिए क्या, BCP business continuity plan must be oral, क्या कहते हो, ओरल होना चाहिए। तू ये कर लेना, तू वो कर लेना, तू ऐसा कर लेना, तू वैसा कर लेना, ठीक है, तू फूक मार लेना, तू ऐसा, तू मिट्टी फेंक देना ऐसी, हाँ मिट्टी पा, ऐसा देखते हैं। Auditors check whether the organizations audited have appropriate high quality disaster recovery plan in place. सर आप तो बीसीपी पढ़ा रहे हो, यहां तो डिजास्टर रिकवरी लिखा है। टू बी ऑनेस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लान बीसीपी एक ही बात नहीं है, बट हमें सीए फाइनल में पूरा चैप्टर ही है बीसीपी डीआरपी पे फाइनल्स में। तो then operations and management control, auditors can use interviews, observation, review of document to evaluate the activities of documentation librarians, how well operation management undertakes the capacity planning and performance monitoring function, the reliability of outsourcing vendor controls, the reliability of outsourcing vendor, ये वेंडर को क्यों क्यों वेंडर को क्यों रिलायबिलिटी होनी चाहिए वेंडर की, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है सॉरी। एंड whether operation management is monitoring compliance with outsourcing contract, ठीक है, the operations management is monitoring compliance with outsourcing contract, कोई आउटसोर्स कोई काम हमारी कंपनी ने आउटसोर्स किया है, तो आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, रेज योर हैंड्स, आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड मानसी, वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड अरजीत, अरजीत बोल बेटा, सॉरी कौन सा एलए, इट इज SLA, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। तो सर्विस लेवल अग्रीमेंट में जो लिखा है वो ऑपरेशंस में आ रहा है या नहीं, ये वेरीफाई करना हमारा काम है। एंड वेदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट रेगुलरली असेस द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ एनी आउटसोर्सिंग वेंडर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस। सो गाइस ये पूरा पूरा आंसर वही है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू एडिशन है। इसको आंसर को लर्न करने का वही तरीका है, टाइम पास से डरो, क्वालिटी से बीसीपी पढ़ो, ओ थोड़ा सा अजीब तरीके से लर्न करना है, दैट्स इट, पढ़ो ओ ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब मेरी बात यह है कि जो जो वहां लिखा है वो रिपीट है, सिर्फ ऐड ऑडिटर्स एंगल, जब आंसर लिखोगे तो आखिरी एक या दो लाइन में ऑडिटर का एंगल ऐड कर देना, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो वहां पर लिख देना द आंसर इज सेम एज दैट ऑफ वेरी फर्स्ट चैप्टर, बट यू हैव टू ऐड ऑडिटर्स एंगल। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सो गाइस मैनेजरियल कंट्रोल्स एट द एंड ऑफ द डे वही है, बस आपको ऑडिट का एंगल उसमें डाल देना है कि यस जो मैनेजरियल कंट्रोल्स में होना चाहिए, एन ऑडिटर शुड वेरीफाई इट, दैट्स दैट। ऑलराइट, मूविंग अहेड, our next agenda of concern is audit trail. Tell me what are the two types of audit trails? Accounting audit trail and
ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल, ठीक है. अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, टेल मी, I'm talking about accounting audit trail. Yes, what do I write here? Accounting audit trail, record events. And what do you write? Operations audit trail, resource consumption. अब 2-3 दिन से मैं लगातार इसका बेस बनाते हुआ आ रहा हूं, तो आज आपके लिए ये केक वॉक हो गया है, ठीक है. परसों मैंने पहली बार, नरसों मैंने पहली बार समझाया था, फिर दूसरे दिन फिर से रिवीजन हुआ, तीसरे दिन फिर से रिवीजन हुआ. आज मैंने आपको रिसोर्स कंजम्पशन का लॉग्स की हेल्प से एक एग्जांपल भी बताया, तो अब कंसेप्ट कॉन्क्रीट हो गया. अब असली एप्लीकेशन पढ़ते हैं इसका. एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रेल. टू टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल दैट शुड एक्सिस्ट इन ईच सबसिस्टम आर, पहला अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स within the subsystem, record of events. An operation audit trail to maintain a record of resource consumption associated with each event in the subsystem. So guys, we know this very well. अब हम लोगों को ऑडिट ट्रेल किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है? देखो हेडिंग देखो, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है? And what are the various application controls? Boundary controls, input controls, processing controls, output, database and communication. अब हमें एप्लीकेशन कंट्रोल्स और उनके ऑडिट ट्रेल्स पढ़ने हैं, ठीक है. ऑडिट ट्रेल क्या है हमें ऑलरेडी पता है. टेल मी व्हाट आर द वेरियस बाउंड्री कंट्रोल्स फर्स्ट, तो हम आगे बढ़ने में कोई फायदा है? क्रिप्टोग्राफी, पासवर्ड, पिन्स, आई कार्ड्स एंड बायोमेट्रिक्स, ठीक है, सही है. अगर ये लर्न है तो ऑडिट ट्रेल पढ़ने में या ऑडिट ट्रेल समझने में आसानी होगी. आ जाइए, बाउंड्री कंट्रोल्स. ऑडिट ट्रेल इज ऑल अबाउट वन वर्ड, audit trail is all about chronology. इट्स ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी, इट्स अबाउट सीक्वेंस कि कब कौन सा क्या इश्यू हुआ है. इट्स अबाउट दैट. चलो, बाउंड्री कंट्रोल. दिस मेंटेन्स द chronology of events that occur when a user attempts to gain access to an employee system resources. बाउंड्री कंट्रोल्स के वक्त बाउंड्री कंट्रोल्स की एक कोशिश होगी, इट विल मेंटेन द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स व्हेन द यूजर अटेम्प्ट्स टू एक्सेस द सिस्टम. बाउंड्री कंट्रोल्स के एग्जांपल जैसे पासवर्ड, पिन्स. क्या इससे हमें पता चल सकता है कि बंदे ने कितने बजे एक्सेस किया? हाँ या ना? प्रोवाइडेड क्या मेंटेन हुए हो? दैट्स द वर्ड, प्रोवाइडेड लॉग्स मेंटेन हुए हो. और लॉग्स मेंटेन हुए हो तो हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उस लॉग्स में? देखते हैं. आइडेंटिफाई द वुड बी यूजर ऑफ द सिस्टम. पहले तो हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर कौन होगा ये देख लो. ऑथेंटिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड. रिसोर्स रिक्वेस्टेड, उस बंदे ने कौन से रिसोर्स रिक्वेस्ट किए थे इसकी इंफॉर्मेशन लो. टर्मिनल आइडेंटिफायर. व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल आइडेंटिफायर? व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनल इन फर्स्ट प्लेस? कुछ याद आ रहा है क्या? क्लाइंट्स, नोड्स और एक नाम था, क्या था वो? कौन से कंप्यूटर से एक्सेस हुआ है, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकता है? कौन से सिस्टम से एक्सेस हुआ है, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकता है? ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए. ये है लॉग जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं. क्या यहां पे टर्मिनल आइडेंटिफायर है? देखो जरा गाइस, ठीक है. यूजर टू एडमिन 1, यूजर टू एडमिन 1, यूजर 3, यूजर 1, ठीक है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये सारे कंप्यूटर्स के बारे में बताता है. ये सारी चीजें कंप्यूटर्स कौन से सिस्टम से एक्सेस हो रहा है.
टर्मिनल आइडेंटिफायर, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम। ओ माय गॉड सर, वहां तो था ही नहीं स्टार्ट और फिनिश टाइम। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उसको तो यहां पे कुछ जगह लॉग इन है, कुछ जगह लॉग आउट है, तो आपको स्टार्ट और फिनिश टाइम भी मिल जाएगा या मिलना चाहिए। अगर आप सही में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको स्टार्ट एंड फिनिश टाइम मिल जाएगा। वहां पे लिख दो लॉग इन एंड लॉग आउट along with time. And the next point, number of sign on attempts. What do you mean by this number of sign on attempts? What do you mean by this number of sign on attempts? कितनी बार लॉगिन करने की कोशिश की है, कितनी बार। अगर एक इंसान ने अगर 15 बार लॉगिन करने की कोशिश की है एज एन आईएएस ऑडिटर, क्या इंफरेंस निकालोगे आप? Should not be, he could not be an unauthorized user if he doesn't know the password. Simple. Okay. अब ये सारे बाउंड्री कंट्रोल के ऑडिट ट्रेल ने, बाउंड्री ध्यान से सुनो मैं जो सिखा रहा हूं, बाउंड्री कंट्रोल के ऑडिट ट्रेल ने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। बाउंड्री कंट्रोल के ऑडिट ट्रेल ने ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि इस सिस्टम का यूजर कौन होगा, ठीक है, कौन सी रिसोर्सेज सप्लाई करनी चाहिए, बंदे ने कौन सी रिसोर्सेज मांगी है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, कौन सी वीडियोस फोटोज मांगी है, टर्मिनल आइडेंटिफायर कौन से कंप्यूटर से एक्सेस किया जा रहा है सर्वर को, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम एंड नंबर ऑफ साइन ऑन अटेम्प्ट्स। क्या इस सारी इंफॉर्मेशन से रॉन्ग डूअर का पता चल सकता है, ये बताओ। क्या इस सारी इंफॉर्मेशन से रॉन्ग डूअर का पता चल सकता है? ठीक है। अब गाइस मैं आपको बात बता सकता हूं सर, जैसे हम एक कंपनी में, मैं, खान, पार्थ, ठीक है, अंशु, साक्षी, हम लोग एक कंपनी में। अब इसमें से सबसे वल्नरेबल कौन है, इमोशनली वल्नरेबल? सबसे इमोशनली वल्नरेबल है से अंशु। तो मैंने अंशु को कहा कि अंशु यार मैं दोस्त नहीं के तेरा, प्लीज मुझे एक्सेस दे दे। मैंने अंशु के साथ कौन सी टेक्निक यूज की है? सोशल इंजीनियरिंग। मैंने अंशु के साथ सोशल इंजीनियरिंग यूज की है। मैंने उसके ट्रस्ट की टेंडेंसी को मिसयूज किया है और मैं उसके सिस्टम पे बैठ गया। मैंने, और मुझे अंशु ने यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया है, तो बाउंड्री कंट्रोल तो ब्रीच। सुनो ना, नंबर ऑफ साइन ऑन अटेम्प्ट्स आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अंशु ने खुद यूजर आईडी पासवर्ड दिया है। स्टार्ट और फिनिश टाइम आएगा क्या ऑडिट ट्रेल में? आएगा। टर्मिनल आइडेंटिफायर आएगा? आएगा। मैंने कौन सी फाइल मांगी है, ये आएगा? ठीक है। आइडेंटिफाई द वुड बी यूजर अंशु, लेकिन वुड बी यूजर अंशु है और जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी अंशु को मिलती है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो सिर्फ अब मुझे बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन बाउंड्री कंट्रोल्स ने कलेक्ट कर ली है, मुझे कैसे पकड़ोगे? मुझे कैसे पकड़ोगे? नाम किसका फंसेगा? मैंने कुछ गलत काम कर दिया, नाम किसका फंसेगा? अंशु बोलेगी कि उस समय सिस्टम पवन यूज कर रहा था, तो मुझसे पूछताछ होगी, मैं कहूंगा मैं नहीं कर रहा था, मैं क्यों करूंगा उसका कंप्यूटर यूज, उसने तो पासवर्ड किसी को देना ही नहीं चाहिए। एज पर द सिक्योरिटी मैं तो झूठ बोल दूंगा ना, मैं क्यों फंसूंगा? उसने तो पासवर्ड किसी को देना नहीं चाहिए, कैसे दिया उसने? बेवकूफ है क्या वो? अंशु कह रही है दिल में, हाँ साले। अब मेरी बात सुनो, मुझे पकड़ोगे कैसे ये बताओ? मैंने तो मना कर दिया, मुझे पकड़ोगे कैसे? अच्छा, मैंने कितने बजे लॉगिन किया ये समय मिल जाएगा क्या? डेट के साथ? 18 अगस्त को 2:55 पे लॉगिन हुआ। कितना कितना समय बोला था, कितना कितने बजे? 18 अगस्त 2:55।
18 अगस्त 2:55 के सारे फुटेज निकालो। अंशु के उस सिस्टम पे कौन बैठा था निकालो। क्या वहां पे अंशु दिखेगी? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? अंशु डोंट वरी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ठीक है, सो गाइस, कैन कैन ऑडिट ट्रेल्स बी यूज्ड? कैन ऑडिट ट्रेल्स बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ साइन ऑन अटेम्प्ट? नहीं, यानी मैं यूजर आईडी पासवर्ड मुझे पकड़ा जाएगा, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन होनी तो चाहिए। क्या कहते हो? दिस इज वेयर ऑडिट ट्रेल एक्ट्स एज एविडेंस। चलो कोई बात नहीं। अब ऑडिट ट्रेल, बाउंड्री कंट्रोल्स के केस में ऑडिट ट्रेल, दो टाइप का ऑडिट ट्रेल्स होती है। कौन सी? अकाउंटिंग एंड ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है देखते हैं। अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में मुझे कौन से एक्शंस और प्रिविलेजेस अलाउड हुए हैं या डिनाई हुए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन क्यूमुलेट होगी। और ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल में रिसोर्स यूजेज फ्रॉम लॉग इन टू लॉग आउट टाइम एंड लॉग ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन। यानी क्या? मैंने अंशु का सिस्टम कितने समय तक यूज किया, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, और मैंने कौन सी फाइल्स रिक्वेस्ट करी है, ये सारी ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल का पार्ट है। इसको लर्न करने जाओगे फंस जाओगे, इसमें दिमाग लगाओगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आएगी। आर यू देयर विथ मी? एक यूजर को कौन सी एक्शंस, कौन सी प्रिविलेज अलाउड है, कौन सी फाइल्स, ठीक है, उसको मिल सकती है, ये सारी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में आ जाएगी। उसने कितने बजे लॉगिन किया, ये भी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में आ जाएगा। लेकिन उसने कितने समय तक सिस्टम यूज किया, ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। ठीक है, सो गाइस, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशन कंट्रोल्स? बाउंड्री कंट्रोल्स हमने लर्न कर लिए थे। बाउंड्री कंट्रोल्स के ऑडिट ट्रेल भी हमने काफी डिटेल में पढ़े हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? मूविंग अहेड, बाउंड्री कंट्रोल्स के बाद इनपुट कंट्रोल्स। टेल मी द वेरियस इनपुट कंट्रोल्स। हा हा हा। Source document control, data coding error, batch control, validation controls. Oh my dogs. What are the various data coding errors? क्या ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोजिशन, नॉट बैड। ये बैच कंट्रोल में भी कुछ है क्या? फाइनेंशियल टोटल, हैश टोटल एंड रन टू रन टोटल। वैलिडेशन कंट्रोल्स में फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल। बस सॉरी सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने तुम पे शक किया, आई एम सो सॉरी। चलो देख लेते हैं इनपुट कंट्रोल्स में वो लोग कौन सी चीजें करते हैं। एक मिनट, ऑडिट ट्रेल को एक शब्द में बताएंगे प्लीज? आप क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, दिस मेंटेन्स द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स from time data and instructions are captured and entered into the application system until the time they are deemed valid and passed on to other subsystem within the application. अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल क्या क्या काम करता है? सोर्स, ठीक है, इनपुट कंट्रोल्स के अंदर अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल 4-5 चीजें चेक करता है। ये अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल ये सारी चीजें हमें इन्फॉर्म करता है। लेट्स चेक इट आउट। अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल, द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन who was the source of data. Oh my God. क्या हमें अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल से यह पता चल सकता है कि ये ट्रांजैक्शन किया किसने? क्या ये पता चल सकता है? आपने आपकी ट्यूशन क्लास में एडमिशन ली है, तो आपकी एडमिशन किसने करवाई है? हमारे ट्यूशन क्लास के कौन से एम्प्लॉय ने कराई है? ये कैसे पता चलेगा हमको? सर वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ना सर, उस पे किसी एम्प्लॉय की ऐसी साइन रहती है चाइनीज में। ठीक है, तो क्या इनिशियल्स कहते हैं इसको। तो क्या इनिशियल से पहचान पाएंगे कि आपकी एडमिशन किसने करी है? क्या इनिशियल से पहचान पाएंगे कि आपकी एडमिशन किसने करी है? टेल मी। यस, तो गाइस पहले, और क्या साइन का हमेशा कॉलम होता है किसी भी रिसीट में? साइन का ऑथराइज्ड सिग्नेटरी सोर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ इनपुट कंट्रोल का ऑडिट ट्रेल।
आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु एंटर्ड द डेटा इनटू द सिस्टम। गाइस एक मिनट सर, दोनों एक, जिसने एडमिशन कराया वो डेटा एंट्री करेगा, उसमें क्या अलग अलग रहेगा? जिसने एडमिशन कराया और जिसने डेटा एंट्री करी, अगर सेम इंसान रहा तो फिर धिक्कार है हम पे, इतना एसओडी एसओडी पढ़ रहे हम लोग। ठीक है गाइस, जिसने भी सिस्टम में डेटा एंट्री करी है उसकी इंफॉर्मेशन, द टाइम एंड डेट व्हेन द डेटा वाज कैप्चर्ड, सिस्टम में डेटा एंट्री कितने बजे हुई है ये भी पता करो। द आइडेंटिफायर ऑफ द फिजिकल डिवाइस यूज टू एंटर द डेटा इनटू द सिस्टम, यानी डेटा एंट्री कौन से कंप्यूटर से हुई है, ये लॉग में पता चल सकता है क्या कौन से कंप्यूटर से डेटा एंट्री हुई है? The time and date when the data was captured, the identifier of the device, then account or record to be updated by the transaction, the account or record to be updated by the transaction, यानी कौन सी मास्टर फाइल अपडेट होने वाली है ये पता चलना चाहिए। नंबर ऑफ फिजिकल और लॉजिकल बैच टू विच द ट्रांजैक्शन बिलोंग, ये जो ट्रांजैक्शन है कौन सी फिजिकल या लॉजिकल बैच को बिलोंग करती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में मिल जानी चाहिए। ठीक है, यानी बेसिकली अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में हमको कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है? हु, सही बात है, हु मिलता है हमें, हु का आंसर मिलता है। ट्रांजैक्शन किसने किया, हु। डेटा एंट्री किसने की, हु। दूसरा क्या मिलता है हमें अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल में? व्हेन, कितने बजे की। ठीक है, व्हेन। ठीक है, द आइडेंटिफायर ऑफ द फिजिकल डिवाइस यूज्ड, आइडेंटिफायर ऑफ द फिजिकल डिवाइस यूज्ड। ठीक है, एंड आपका कौन सा, ठीक है, आपका कौन सा वो हु और व्हेन पे आपको कंसंट्रेट करना है। जब भी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल का आंसर बनाओगे तो कौन से दो क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल ने? हु एंड व्हेन, किसने एक्सेस किया, कब एक्सेस किया, यानी ये दो क्या है, सारे अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल के आंसर में कॉमन टॉपिक है, सारे अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल के एग्जांपल में कॉमन टॉपिक है। उसके बाद अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल के बाद इनपुट कंट्रोल में क्या पढ़ना बाकी है अभी बताओ जल्दी? ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। लेट्स चेक आउट ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल में कैसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। टाइम टू की इन सोर्स डॉक्यूमेंट, टाइम टू की इन सोर्स डॉक्यूमेंट और एन इंस्ट्रूमेंट एट अ टर्मिनल। ओ माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा ये पॉइंट, क्या कह रहा है ये पॉइंट, समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज इट सेइंग? क्या आपको कभी याद है कि मैंने आपको सिखाया है कि अगर मुझे एक टैली में अकाउंटिंग एंट्री करनी है तो कितना समय लगना चाहिए एक अकाउंटिंग एंट्री के लिए? क्या मैंने आपको ऐसा कभी सिखाया है? अच्छा, क्या शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते करते थक जाते हैं? आई एम सो सॉरी, ऑफ ट्रैक जा रहा हूं। क्या शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते करते थक जाते एक पॉइंट के बाद? गिव जेन्युइन आंसर्स। नहीं तो नहीं थकते, तो थकते, नहीं थकते तो नहीं थकते। क्या एक पॉइंट के बाद हिम्मत ही नहीं होती अब नहीं जाना भाई, बस हो गया बस। अब सबसे शॉपिंग करने के बाद, जैसे सेंट्रल जैसे मॉल में आप शॉप करते हो, तो सबसे बगिंग पार्ट क्या है सब कुछ हो जाने के बाद? बिलिंग। अब बिलिंग काउंटर पे कितने लोगों ने बहुत लंबी लाइन देखी है? क्या देखी है तुमने लंबी लाइन? बहुत बहुत लंबी लाइन। ठीक है ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, शॉपिंग मॉल में वो लोग जो अकाउंटिंग करते हैं वो ऐसे ऐसे बारकोड रीडर के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, बारकोड रीडर ऐसे ऐसे बारकोड रीडर चलाते हैं डिवाइसेस पे, या फिर वो टैली में करते रहते हैं दिस अकाउंट डेबिट दैट अकाउंट क्रेडिट। बारकोड क्यों करते होंगे, ऐसा क्यों करते होंगे? बारकोड से डेटा एंट्री
जल्दी होती है, बारकोड से डेटा एंट्री जल्दी होती है। और अगर बिलिंग में अगर 15 मिनट से ज्यादा लग गए तो लोग शॉपिंग ही नहीं करते, छोड़ देते हैं चीजें वहीं, छोड़ दे, नहीं खरीदना कुछ, इतना समय नहीं लगा सकते। अब समझो, एक कंज्यूमर का बिलिंग पीरियड 7 मिनट से ज्यादा हो गया तो उसको इरिटेशन चालू हो जाती है, 10 मिनट से ज्यादा हो गया तो वो शॉपिंग ही कैंसिल कर देता, मुझे नहीं करनी शॉपिंग, इतना समय लग रहा है बिलिंग के लिए। क्यों? उसका क्या वेस्ट हो रहा है? खड़े रहे चुपचाप, क्या वेस्ट हो रहा है उसका? टाइम। शॉपिंग करना इज अ प्लेजेंट एक्टिविटी, लेकिन उसका बिल बनाने के लिए मुझे 10 मिनट से ज्यादा रुकना पड़ रहा है, इट्स अनएक्सेप्टेबल टू मी। गाइस, पता करो कि सोर्स डॉक्यूमेंट से सिस्टम में एंट्री करने के लिए कितना समय लगता है। अगर ज्यादा समय लगता है तो हम अपना रेवेन्यू लूज कर सकते हैं। कीबोर्ड हटाओ, कीबोर्ड हटाओ और कौन सा डिवाइस लेके आओ? बारकोड स्कैनर। नंबर ऑफ रीड एरर्स मेड बाय द स्कैनिंग डिवाइस। अब ये बारकोड रीडर भी एकदम ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम झटके से एकदम रीड ही कर लेंगे, तो कितनी एरर्स करता है पता करो। 1 मिनट, बारकोड रीडर में एक डिवाइस की शॉपिंग करने के लिए, बारकोड रीडर में एक डिवाइस की शॉपिंग करने के लिए 4 बार रीड करना पड़ रहा है, तो क्या वो बारकोड रीडर को कुछ मतलब नहीं बना? क्या कहते हो? बारकोड रीडर को लाए क्यों थे कीबोर्ड को रिप्लेस करके? समय बचाने के लिए। और क्या किया तुमने? बटन ही दबाते रहे बेचारा एम्प्लॉय, होना होना होना। ठीक है, उसके सेल को ऐसा ऐसा कर रहा, घुमा रहा पीछे से, ये सब। 1 मिनट, ये सब मत करो भाई, इतना समय नहीं है। या फिर वो कस्टमर के सामने ऐसा ऐसा कर रहा बारकोड रीडर को, मैडम आप भी एक बार देखो ना, कुछ कर, हो रहा है, हो नहीं रही। 1 मिनट, 1 मिनट। आप ये सब अनप्लीजेंट्रीज उनके सामने नहीं कर सकते। चेक करो कितने बार एरर किया, अगर एरर किया तो ये कंपनी का बारकोड नहीं खरीदेंगे अगली बार। एंड लास्ट वन, अगर बारकोड नहीं है तो फिर डेटा एंट्री के वक्त, अगर बारकोड नहीं है तो डेटा एंट्री के वक्त number of keying errors identified during verification. What are keying errors? बताओ तो जरा, what are keying errors? डेटा एंट्री करते वक्त जो एरर्स होती है उसको कहते हैं कीइंग एरर्स। ये लिखते वक्त गलती हो जाती है क्या मुझसे? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसपोजिशन, ठीक है। एंड टाइम टेकन टू इन्वोक एन इंस्ट्रक्शन यूजिंग अ लाइट पेन वर्सेस अ माउस। तो क्या क्या माउस से करना चाहिए या फिर लाइट पेन से करना चाहिए? 1 मिनट, मॉल में जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, माउस बेस्ड होती है? टच स्क्रीन। माउस माउस के झंझट में नहीं पड़ते। माउस में कैसा रहता रे? ऐसा ऐसा करो, क्या है ये, इसमें तो लाइट ही नहीं आ रहा, बेकार है ये। 1 मिनट, इसलिए टच स्क्रीन होता है वहां पे। तो ये टच स्क्रीन इनका अपडेटेड नहीं है। पहले के जमाने में टच स्क्रीन नहीं होता था, टच करने के लिए एक पेन की जरूरत पड़ती थी। जैसे ये पेन से भी मैं इसको टच कर सकता हूं, ये पेन से भी मैं स्लाइड चेंज कर सकता हूं, लाइक इट वर्क्स टू दैट पेन टच ऑल्सो। तो पहले जमाने में आप हाथ से नहीं टच कर सकते थे, पेन से ही टच करना पड़ता था आपको। तो चेक करो कि कितने बार ये माउस अच्छा है या लाइट पेन अच्छा है या टच अच्छा है। ऐड कर दो, लाइट पेन को ब्रैकेट में लिखो, नाउअडेज लाइट पेन इज नॉट यूज्ड, टच इज यूज्ड। तो ऐसी एरर्स कितने बार हुई है पता करो, ऐसी एरर्स कितने बार हुई है ये पता करो। दिस आर ऑल द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल। कोई भी पॉइंट लो, अब कोई भी पॉइंट लो, ऑपरेशंस ऑडिट ट्रेल में कोई भी पॉइंट लो। लॉगिन कब हुआ, लॉग आउट कब हुआ, क्या ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल का पार्ट है? कितने समय तक सिस्टम यूज हुआ, क्या ऑपरेशन ऑडिट ट्रेल का पार्ट है? या नहीं, ये कहीं ना कहीं क्या चेक कर रहा है? टाइम चेक कर रहा है, सिस्टम की एफिशिएंसी चेक कर रहा है। Alright, so guys, these were all about the application controls and their audit trails। और भी एप्लीकेशंस है केटर करने के लिए, एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं, लेकिन आज के लिए, आज के सेशंस के लिए बाउंड्री इनपुट कंट्रोल्स। कल प्रोसेसिंग आउटपुट डेटाबेस और कम्युनिकेशन कंट्रोल्स करेंगे एंड विल वाइंड अप दिस चैप्टर। ऑलराइट, सो दैट्स इट एज फार एज audit trail is concerned, application controls and their audit trail. Thank you so much. We are calling it a day. I'm Pawan Gaukar signing off. Very few lectures are left. Please
start studying with the class. Please start making your own efforts. Till then, see you in the next video. Bye bye. Take care. Study well. Bye.